السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، یہ سبق چل رہا ہے جواہر المنطق کا۔ اس سے قبل آپ نے علم اور ذہن کی تعریف پڑھی، اس کے بعد دلالت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی تعریف پڑھی، اس کے بعد وضع کی تعریف پڑھی، دلالت اور وضع میں کیا فرق ہے اس کو پڑھا آپ نے دلالت کی تعریف پڑھی تھی کہ کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، اور شے اول کو دال، شے ثانی کو مدلول کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، تو یہ دلالت کی تعریف تھی۔ اب آج جو ہے دلالت کی قسموں کو بیان کریں گے۔ پیارے دوستوں، یہ جو ایک چیز کا جاننا ہے، ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا ہے، پہلی چیز کو جانا، اسی پہلی چیز کے جاننے سے ہمیں دوسری چیز کا بھی علم ہو گیا۔ تو یہ جو ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جو جاننا لازم آ رہا ہے، تو یہ جاننا دو طریقے سے ہے۔ کبھی تو ہمیں ایک چیز کے جاننے سے جو دوسری چیز کا علم ہمیں ہو رہا ہے، یہ لفظوں سے ہوگا، کبھی تو ہمیں لفظ سے ہوگا، یعنی ہم نے کوئی لفظ سنا، پھر ہمیں اس لفظ کو سن کر دوسری چیز کا علم حاصل ہو گیا۔ اور کبھی ایک چیز کا جاننا، ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا، یہ لفظ کے علاوہ سے ہوگا۔ جاننا دو طریقے سے ہے، ایک یہ کہ لفظ کو سن کر دوسری چیز کو جانا، اور دوسرا یہ کہ ایک چیز کو جانا تو، لیکن وہ جو پہلی چیز ہے وہ لفظ نہیں ہے، پھر بھی ہم دوسری چیز کو جان رہے ہیں۔ لفظ کو سن کر جانے دوسری چیز کو، لفظ پہلی چیز کو سن کر، یعنی پہلی چیز لفظ ہے، اس کو سن کر دوسری چیز کو جانے، اور پہلی چیز لفظ نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو جاننے سے دوسری چیز کو جانیں۔ تو پتہ چلا دلالت دو طریقے سے ہے۔ لفظ کو سن کر دوسری چیز کو جانے تو اس کو بولتے ہیں دلالت لفظیہ۔ لفظ کو سن کر دوسری چیز کو نہ جانے، بلکہ جو پہلی چیز ہے وہ لفظ کے علاوہ ہو، یعنی وہ چیز لفظ نہ ہو، پھر بھی ہم دوسری چیز کو جان رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں دلالت غیر لفظیہ۔ لفظ سے جانے تو دلالت لفظیہ، اور بغیر لفظ کے جانے، یعنی وہ چیز جانے تو لیکن وہ چیز لفظ نہ ہو اور دوسری چیز کو جان لے رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں دلالت غیر لفظیہ۔ لفظ سے جانے دوسری چیز کو، اس کی مثال جیسے کہ لفظ زید، ہم نے زید کا نام سنا تو ہم نے ذات زید کو جان لیا، تو یہ لفظ ہے۔ ایک لفظ کو سن کر ہم دوسری چیز کو جان رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں دلالت لفظیہ۔ دوسری چیز کو جان رہے ہیں، پہلی چیز کو جان کر دوسری چیز کو جان تو رہے ہیں، لیکن لفظ کو نہیں سنا ہم نے، لفظ کے ذریعے سے ہم نے اس چیز کو نہیں جانا ہے، پھر بھی ہم دوسری چیز کو جان رہے ہیں۔ اس کی مثال جیسے دھواں کو دیکھ کر ہمیں آگ کے وجود کا علم ہو گیا، آگ وہاں پر موجود ہے اس چیز کا علم ہو گیا۔ تو دیکھیے دھواں تو لفظ نہیں ہے، پھر بھی ہم دوسری چیز کو جان رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو یہ دلالت ہے یہ دو طریقے سے ہے، لفظ کو سن کر دوسری چیز کو جاننا، اور لفظ کے علاوہ بھی دوسری چیز کو جاننا۔ ٹھیک ہے، جیسے لفظ زید کے جاننے سے ذات زید کا جاننا، تو یہ لفظ میں لفظ کو سن کر دوسری چیز کو جان رہے ہیں، اور دھواں دیکھ کر ہمیں آگ کا علم ہو رہا ہے، تو یہ بغیر لفظ کے ہم دوسری چیز کو جان رہے ہیں۔ تو پتہ چلا دلالت دو طریقے سے ہیں، دلالت لفظیہ، اگر لفظ کو سن کر جانے تو دلالت لفظیہ، اور اگر لفظ کو سن کر دوسری چیز کو نہ جانے بلکہ بغیر لفظ کے ہم دوسری چیز کو جان لیں تو اس کو بولتے ہیں دلالت غیر لفظیہ۔ ٹھیک ہے، اب دلالت جو ہے چاہے وہ لفظیہ ہوں چاہے غیر لفظیہ ہوں، عام ہے یہ اس بات کو یاد رکھنا کہ دلالت کی دو قسمیں ہو گئی، دلالت دو طریقے سے ہوتی ہیں۔ اگر لفظ کو سن کر ہم دوسری چیز کو جانتے ہیں تو دلالت لفظیہ، اور اگر لفظ کو سن کر ہم دوسری چیز کو نہ جانیں بلکہ ہم لفظ کے علاوہ ہی سے دوسری چیز کو جان لیں، یعنی لفظ کے بغیر دوسری چیز کو جان رہے ہیں، تو دلالت غیر لفظیہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو،
یہ دونوں تین طریقے سے ہوتی ہیں، یہ دونوں تین طریقے سے ہوتی ہیں۔ اگر وہ دلالت چاہے لفظیہ ہو چاہے غیر لفظیہ ہو، یعنی لفظ سے سن کر جانے یا بغیر لفظ کے جانے، اگر وہ دلالت واضح کے وضع کرنے سے ہو، متعین کرنے والے کے متعین کرنے سے ہو، ٹھیک ہے، واضح کے وضع کرنے سے ہو، متعین کرنے والے کے متعین کرنے سے ہو، جیسے لفظ زید کے کو متعین کیا گیا ذات زید کے لیے، تو کہہ رہے ہیں اگر وہ دلالت واضح کے وضع کرنے سے ہو، متعین کرنے والے کے متعین کرنے سے ہو، تو اس کو بولتے ہیں دلالت وضعیہ لفظی، وضعیہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دلالت وضعیہ۔ اسی طریقے سے اگر وہ دلالت واضح کی وضع کرنے سے تو نہ ہو، لیکن طبیعت سے پیدا ہو، طبیعت سے ہمیں وہ چیز معلوم ہو رہی ہو، عام ہے چاہے وہ لفظ میں ہو یا غیر لفظ میں ہو، لفظ سے ہمیں وہ چیز معلوم ہو رہی ہو، یعنی لفظ کو سن کر وہ چیز معلوم ہو رہی ہو، یا لفظ کے علاوہ سے سن کر ہمیں وہ چیز معلوم ہو رہی ہو، بہرحال وہ چیز ہمیں طبیعت سے پتہ چل رہی ہو، تو اس کو بولتے ہیں دلالت طبعیہ۔ اسی طریقے سے واضح کے وضع کرنے سے نہ ہو، طبیعت سے پیدا شدہ نہ ہو، طبیعت سے وہ چیز ہمیں نہ معلوم ہو رہی ہو، بلکہ عقل سے ہمیں وہ چیز معلوم ہو رہی ہو، اب وہ چاہے لفظ کے ذریعے سے معلوم ہو یا بغیر لفظ کے معلوم ہو، تو اس کو بولتے ہیں دلالت عقلیہ۔ کیا بولتے ہیں؟ دلالت عقلیہ۔ پتہ چلا چاہے دلالت لفظیہ ہو چاہے دلالت غیر لفظیہ ہو، یہ دونوں دلالتیں تین طریقے سے ہوتی ہیں۔ اگر واضح کی وضع کرنے سے معلوم ہو تو دلالت وضعیہ، اگر طبیعت سے پیدا شدہ ہو یعنی طبیعت سے وہ چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہو تو دلالت طبعیہ، اور اگر عقل سے ہمیں وہ چیز معلوم ہو رہی ہو تو دلالت عقلیہ۔ اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ دلالت تین طریقے سے ہوتی ہیں، تو اب ہمیں تھوڑا اور ذہن کو باریک کر کے اور ان دلالتوں کے قریب کر کے تھوڑا آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر ہم نے کہا نا دلالت تین طریقے سے ہوتی ہیں، اگر واضح کی وضع کرنے سے ہو تو دلالت وضعیہ، اگر جو ہے طبیعت سے پیدا ہو تو دلالت طبعیہ، اور اگر عقل سے پیدا ہو تو دلالت عقلیہ۔ اب چاہے دلالت وضعیہ ہو چاہے دلالت طبعیہ ہو چاہے دلالت عقلیہ ہو، یہ تینوں دلالتیں یہ لفظ میں بھی ہو سکتی ہیں اور لفظ کے علاوہ میں بھی ہو سکتی ہیں، بغیر لفظ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمیں دلالت وضعیہ لفظیہ کا علم، دلالت وضعیہ کا علم جو وضع کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی واضح کی وضع کرنے سے ہے، اگر ہمیں اس کا علم لفظ سے پتہ چلتا ہو، اگر ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہو رہا ہو کس سے؟ لفظ سے، تو اس کو بولتے ہیں دلالت وضعیہ لفظیہ۔ اور اگر بغیر لفظ کے معلوم ہو تو اس کو بولتے ہیں دلالت وضعیہ غیر لفظیہ۔ ہم نے کہا نا دلالت تین طریقے سے ہوتی ہے نا، طبعیہ، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ۔ اب یہ وضعیہ لفظ میں بھی ہو سکتے ہیں اور بغیر لفظ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ دلالت وضعیہ لفظ کے ساتھ ہو، اس کی مثال جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، ہم نے زید کو سنا تو ہمیں لفظ زید کو جب سنا یعنی زید کے نام کو سنا تو ہمیں زید کے بارے میں پتہ چلا، لفظ بہرائچ کو سنا تو شہر بہرائچ کے بارے میں پتہ چلا، تو یہ وضعیہ ہے، کیونکہ اس کو بہرائچ کا لفظ شہر بہرائچ کے لیے واضح نے وضع کیا ہے۔ لفظ زید کا جو زید ہے، لفظ زید کو واضح نے ذات زید کے لیے وضع کیا ہے، تو یہ وضعیہ ہے اور ساتھ ساتھ میں لفظیہ بھی ہے، وضعیہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں لفظیہ بھی ہے، تو اس کو کہیں گے دلالت وضعیہ لفظیہ۔ اسی طریقے سے وضعیہ جو ہے بغیر لفظ کے بھی ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال ہم نے دھوپ کو دیکھا، سورج کے وجود کا علم ہو گیا، یا اس کو ہٹا دیجیے، اس کو آپ ہٹا دیجیے، یہ تو دلالت عقلیہ میں مثال چلی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہاں وضعیہ دیکھنا ہے کہ واضح نے اس کو وضع بھی کیا ہو، لفظ میں نہ ہو لیکن واضح نے اس کو وضع کیا ہو۔ جیسے کہ ہم اسٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سگنل میں لال بتی جل رہی ہو، یعنی اگر لال بتی جلی تو ہمیں اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ ٹرین رکنے والی ہے، اور اگر ہری بتی جلتی ہے تو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ٹرین چلنے والی ہے۔ تو دیکھو، ہری بتی کا جلنا ٹرین کے رکنے پر، ہری بتی کا جلنے کی دلالت ٹرین کے رکنے پر، اور لال بتی کے جلنے کی دلالت
ट्रेन के रुकने पर और हरी बत्ती के जलने की दलालत ट्रेन के चलने पर। तो ये बताइए हरी बत्ती का जलना ट्रेन के रुकने पर, ये बताओ वाज़े ने वजह किया कि ऐसे ही हो गया, अपने आप से हो गया है? हरी बत्ती का जलना ट्रेन के रुकने पर, ट्रेन के चलने पर, तो बताओ इसको वाज़े ने वजह किया है कि अपने आप से ऐसे हो गया है? आप कहेंगे नहीं हजरत, इसको वाज़े ने वजह किया है। जब ट्रेन का जो है वजूद हुआ होगा और स्टेशन का वजूद हुआ होगा तो ट्रेन मास्टर ने इसको वजह किया होगा कि हाँ ये यात्रियों, ऐसे सफ़र करने वालों, जब ऐसी बत्ती जले तो समझ जाए ट्रेन रुकने वाली है, और जब ऐसी बत्ती जले तो समझिए कि क्या है, ट्रेन चलने वाली है। अब ये बताइए वाज़े ने इसको वजह किया कि नहीं वजह किया? आप कहेंगे वाज़े ने इसको वजह किया, मुतय्यन करने वाले इसको मुतय्यन किया, इसके लिए, ट्रेन के लिए, कि कब चलने वाली है तो कौन बत्ती जलेगी और जब रुकने वाली तो कौन बत्ती जलेगी, है ना? तो कंफर्म हो गया कि इसको वाज़े ने वजह किया है। लेकिन आप गौर करिए कि बताइए क्या हरी बत्ती का जलना और लाल बत्ती का जलना ये लफ्ज है? लफ्ज नहीं है ना। आपने तो आंखों से देखकर पता लगा लिया ना, तो ये लफ्ज नहीं है। तो पता चला कि वज़इया जो है, वज़इया ये क्या है, बगैर लफ्ज के भी होती है। तो अगर दलालत वज़इया तो हो लेकिन लफ्जों में ना हो, वो चीज लफ्ज से हमें ना मालूम हो रही हो, बल्कि वो चीज आंखों से देखकर पता चल जा रही हो, तो इसको बोलते हैं दलालत वज़इया गैर लफ्जिया। ठीक है, वज़इया है ये लेकिन लफ्जिया नहीं है, वज़इया है लेकिन लफ्जिया नहीं है। लफ्ज ज़ैद वज़इया भी था और लफ्जिया भी था। हरी बत्ती का जलना, लाल बत्ती का जलना वज़इया तो है लेकिन ये लफ्जिया नहीं है। तो पता चला कि वज़इया जिस तरीके से लफ्जिया लफ्ज में होती है, इसी तरीके से बगैर लफ्ज में भी होती है। तो पहली किस्म है दलालत वज़इया लफ्जिया और दूसरी किस्म दलालत वज़इया गैर लफ्जिया। बहुत आसानी के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। आप फिर भी अगर ना समझ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछें, और हमारा नंबर भी है वहां पर, आप नंबर पे भी कॉल करके हमसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई दलालत वज़इया लफ्जिया और गैर लफ्जिया। हमने कहा था दलालत तीन तरीके से होती है, वज़इया, तबइया और अकलिया। ठीक है, और हर एक लफ्ज में भी होते हैं और बगैर लफ्ज के भी होते हैं। तो दलालत वज़इया जिस तरीके से लफ्जों में भी था, इसी तरीके से बगैर लफ्ज में भी था। ठीक है, तो ये हो गया दलालत वज़इया लफ्जिया और दलालत वज़इया गैर लफ्जिया। अब दूसरी किस्म को देखते हैं। दूसरी किस्म को देखते हैं कि ऐसी दलालत जो तबीयत से पैदा हो। अब जो ऐसी दलालत जो तबीयत से पैदा हो रही है, ये क्या है, लफ्ज में भी हो सकती है और लफ्ज के अलावा में भी हो सकती है। लफ्ज में हो, उसकी मिसाल इसे उह की दलालत, उह। जब हम उह करते हैं तो ये कब होता है, जब इंसान के सीने में बेहद तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो इंसान मजबूरी में, तबीयत की मजबूरी की वजह से, तबीयत मजबूरन इस आवाज़ को निकालने पर मजबूर होती है। ऐसा नहीं है कि जब उह करता है इंसान तो इस जब इंसान के सीने में दर्द होती है तो तकलीफ होती है, या दर्द होता है और तकलीफ होती है तो इंसान जो है उह निकालता है, ये इसको वाज़े ने वज़ा किया नहीं, बल्कि तबीयत मजबूर करती है ऐसी आवाज़ निकालने पर। ठीक है, और चूंकि ये उह का लफ्ज जो है लफ्जों में है, उह का जो की आवाज़ जो है ये लफ्जों में है, तो पता चला कि ये जो है ये क्या है, तबीयत से पैदाशुदा है, लफ्जों में है, तो उसको क्या बोलते हैं, दलालत तबइया लफ्जिया। दलालत तबइया लफ्जिया, तो ये हुई दलालत तबइया लफ्जिया। इसी तरीके से तबइया जो है ये बगैर लफ्ज के भी होता है। दलालत तबइया जो है ये बगैर लफ्ज की भी होता है। यहाँ तो लफ्जों में जो है तबइया को दिखाया, अब हम दलालत तबइया को बगैर लफ्ज के देखेंगे, यानी लफ्ज नहीं होगी फिर भी दलालत तबइया वहां होगी। उसकी मिसाल जैसे हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बताइए, आंखों से आंसू निकलना, भाई तबीयत ही तो निकालती है। आंसू, हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब सामने वाले ने देखा तो कहा हजरत जी गम में मुब्तला हैं, कोई ना कोई इनको गम जरूर है। अब बताओ, आंखों से आंसू का निकलना ये तबीयत की वजह से होता है ना। तबीयत या तो नाशाज होती है या तो खुशी की बात होती है, तभी आंसू निकलते हैं। तो आंसू का आंखों से निकलना, ये इसमें भी तबीयत की दखल है ना, इसमें भी तबीयत का दखल है। तो ये बताइए, आंसू तबीयत की वजह से निकली, लेकिन ये बताइए ये आंसू लफ्ज है? आप कहेंगे नहीं, ये लफ्ज नहीं है। तो पता चला कि हमें तबीयत से पैदाशुदा जो अलामत है, हमारे आंखों से आंसू का निकलना, ये तबीयत से है लेकिन ये लफ्ज नहीं है। तो जिस तरीके से तबइया लफ्जिया होती है, यानी लफ्जिया लफ्जों के जरिए से दलालत तबइया का पता चलता है, इसी तरीके से तबइया गैर लफ्जिया भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप और कोई मिसाल सेट कर सकते हो। हमने आंखों से आंसू का निकलना, तबीयत जो है गम पर दलालत करना, ये हमने अलग से मिसाल दी है। ठीक है, तो दलालत तबइया भी दो तरीके से है, एक लफ्जों में है और एक बगैर लफ्ज के है। ठीक है, लफ्जों की मिसाल ऊह की दलालत, और बगैर लफ्ज की मिसाल जैसे आंसू का निकलना, ये गम पर दलालत करना है ना, आंसू का निकलना, गम पर दलालत करना। ठीक है बच्चों, अब तीसरी सूरत मैंने बताया चला दलालत तीन तरीके से है ना, तबइया वज़इया लफ्ज वज़इया
اور तबइया और अकलिया। अकलिया भी दो तरीके से, अकलिया भी दो तरीके से है। बाज़ चीज़ें वो हैं कि जिनको अक्ल जो है लफ्ज़ों से पता चला, अक्ल को लफ्ज़ों के ज़रिए से पता चलता है। अक्ल जो पता लगाते हैं वो अक्ल को जो है लफ्ज़ को सुनकर कि हाँ ये चीज़ ऐसा हुआ है, और बात चीज़ ऐसे है कि अक्ल खुद ब खुद फैसला कर दे, वो लफ्ज़ ना हो। ठीक है, उसकी मिसाल जैसे दलालत अकलिया लफ्ज़िया, यानी ऐसी दलालत जो लफ्ज़ों में हो और अक्ल उसका फैसला करे। उसकी मिसाल जैसे हमारे घर के दीवार के पीछे कोई बात कर रहा है और वो दैस 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 कर रहा है। दैस ये ज़ैद का उल्टा है, दैस दैस कर रहा। अब हम अपने कमरे में बैठे हैं और हमने फ़ौरन बता दिया कि वो जो बोल रहा ना दीवार के पीछे, वो क्या है, गूंगा नहीं है। तो देखो, उसका बोलना और हमारा सुनना और हमारा अपने अक्ल में फैसला करना कि वो क्या है, गूंगा नहीं है। ठीक है, तो हमारे अक्ल ने फैसला कर दिया। और चूंकि हमारे अक्ल ने कैसे फैसला किया है, खुद से फैसला नहीं किया बल्कि लफ्ज़ को सुनकर फैसला किया है कि वो गूंगा नहीं है। तो बोलने वाले के गूंगा ना होने पर ये दलालत करना कि बोलने वाला बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो गूंगा नहीं है। तो इसको किसने फैसला किया, अक्ल ने फैसला किया। तो इसी अक्ल ने फैसला किया, तो ये है दलालत अकलिया लफ्ज़िया। ठीक है, इसी तरीके से दलालत अकलिया गैर लफ्ज़िया भी होती है, यानी कि अक्ल ही फैसला करे, लेकिन वो अक्ल लफ्ज़ को सुनकर नहीं बल्कि खुद अक्ल अपने जो है एतबार से उसका फैसला करे। उसकी मिसाल जैसे यही धुआं और आग की मिसाल ले लो कि धुआं को देखा और अक्ल ने फौरन फैसला कर दिया कि वहां पर आग लगी हुई है। तुलु जो है धूप को देखा, अक्ल ने फौरन फैसला कर दिया कि क्या है, सूरज निकला हुआ है। तो बताइए, धुआं है, धूप है, ये लफ्ज़ तो है नहीं, है ना, लफ्ज़ तो है नहीं। और ना ही धुआं को जो है आग के लिए और जो है धूप को सूरज के लिए किसी वाज़े ने वज़ा किया है, ना ही ये तबइया है। तो जाहिर सी बात है ये अकलिया गैर लफ्ज़िया है। अक्ल में हमने इसको फैसला कर लिया कि ये चीज़ हाँ धुआं है तो आग है, धूप है तो सूरज निकला हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये लफ्ज़िया नहीं है बल्कि क्या है, गैर लफ्ज़िया है, और साथ साथ में अकलिया है, क्योंकि अक्ल ने इसका फैसला किया है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का सबक है, मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको समझा दिया है। आप सबसे पहले अपने जहन को हाजिर करके एक बार फिर गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या कहना है कि दलालत दो तरीके से होती है। एक वो दलालत जो लफ्ज़ों से पता चले, एक वो जो लफ्ज़ों के अलावा से पता चले। अगर दलालत ऐसी है कि जो लफ्ज़ों से पता चलती है ना, तो उसको कहते हैं दलालत लफ्ज़िया, और अगर बगैर लफ्ज़ के पता चले तो उसको बोलते हैं दलालत गैर लफ्ज़िया। अब चाहे दलालत लफ्ज़िया हो या गैर लफ्ज़िया हो, इन तीनों ये दोनों की तीन तरह से होती हैं। अगर दलालत वज़िया लफ्ज़िया हो चाहे गैर लफ्ज़िया हो, अगर वो वाज़े के वज़ा करने से हो, ठीक है, और वो लफ्ज़ों में हो, वाज़े के वज़ा करने से हो तो उसको वज़िया कहते हैं, तबइयत से पैदा हो तो तबइया कहते हैं, और अगर अक़ल से मालूम हो तो उसको अक़लिया कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वज़िया हो चाहे तबइया हो चाहे अक़लिया हो, ये भी दो दो हिस्से में बटे हुए हैं। अगर वज़िया है और लफ्ज़ से पता चल रहा है तो दलालत वज़िया लफ्ज़िया, अगर वज़िया है लफ्ज़ से ना चल रहा हो तो वज़िया गैर लफ्ज़िया, तबइया है लफ्ज़ से पता चल रहा हो तो तबइया लफ्ज़िया, तब लफ्ज़ से ना पता चले तो तबइया गैर लफ्ज़िया। ठीक है, अक़लिया है लफ्ज़ से पता चल रहा हो तो अक़लिया लफ्ज़िया, और अगर लफ्ज़ से ना पता चले तो उसको उसके अलावा से पता चले तो उसको बोलते हैं अक़लिया गैर लफ्ज़िया। तो ये 6 किस्में हो गई जो मैंने बड़े ही अच्छे अंदाज में आपको समझाया है। उम्मीद है कि आप हज़रात समझ जाएंगे और समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ने की और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हज़रात जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सवाल करिएगा, और अगर उससे भी समझ में ना आए तो आप हज़रात दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप हमसे दोबारा समझ सकते हैं। चलिए, साहिब किताब ने किस तरीके से बयान किया इसको भी पढ़ लेते हैं आज के सबक में। करें फिर दलालत की 6 किस्में हैं। ठीक है, हमने सब बता दिया, सिर्फ आपको तो बस देखना है किताब को। फिर दलालत की 6 किस्में हैं, दलालत वज़िया लफ्ज़िया, दलालत वज़िया गैर लफ्ज़िया, दलालत जो है तबइया लफ्ज़िया, दलालत तबइया गैर लफ्ज़िया, दलालत अक़लिया लफ्ज़िया, दलालत अक़लिया गैर लफ्ज़िया। साहिब किताब ने हर एक की तारीफ़ भी की है, मैंने बड़े आसान अंदाज में तारीफ़ की है। आप जो है उसको सुन अगर समझ गए होंगे तो यहाँ की तारीफ़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। देखिए, दलालत वज़िया लफ्ज़िया, कह रहे दलालत वज़िया लफ्ज़िया वो दलालत है जिसमें वज़ा की वजह से कोई लफ्ज़ अपने माना को बताए, यानी वाज़े करने की वाज़े की वज़ा करने की वजह से कोई लफ्ज़ अपने माना को बताए। ठीक है, वो दलालत जिसमें वज़ा की वजह से कोई लफ्ज़ अपने माने को बताए, जैसे लफ्ज़ ज़ैद की दलालत अपने मुसम्मा माने ज़ात, यानी ज़ात ज़ैद पर। इस दलालत में लफ्ज़ ज़ैद को मौजू और ज़ात ज़ैद को मौजू लहू कहेंगे। जाहिर सी बात है, जो बताए उसको मौजू, जो वज़ा किया गया उसको मौजू, और जिसके लिए वज़ा किया गया उसको क्या कहेंगे, मौजू लहू कहेंगे। ठीक है, दलालत वज़िया गैर लफ्ज़िया वो दलालत है जिसमें वज़ा की वजह से
लफ्ज़ के मासिवा कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को बताए, लफ्ज़ के मासिवा यानी वो चीज़ लफ्ज़ ना हो फिर भी दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो रहा हो, लेकिन वो वाज़े की वजह करने से हो। ठीक है, जैसे कि तहरीर की दलालत अपने मजमून पर, जाहिर सी बात है जो तहरीर है, लिखी गई जो किताबों में जो तहरीर होती है यानी जो कापियों में लिखी हुई तहरीर होती है, तो हमने देखा कि वो लफ्ज़ नहीं है फिर भी वो एक माना बता रहा है, वो तहरीर अपने एक माना बता रहा है कि भाई ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या माना है ना। तो ये लफ्ज़ नहीं है, जो भाई किताब में वो बात जो लिखी वो लफ्ज़ तो है नहीं, है ना, फिर भी वो माना बता रहा है। तो पता चला कि लफ्ज़ नहीं है फिर भी वो एक चीज़ के जानने से दूसरी चीज़ का इल्म हो रहा है। तो ये क्या होंगे, दलालत वज़इया गैर लफ्ज़ी। और तहरीर को जाहिर सी बात है वाज़े ने वज़ा किया इस तरीके से कि इसकी ये तहरीर ये मजमून है, इस तहरीर का ये मतलब, इस तहरीर का ये मतलब है। वही लफ्ज़ के मासिवा कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को बताए जिससे तहरीर की दलालत अपने मजमून पर और क्या है, और जैसे 4, 8 और 12 के हिंद से की दलालत मखसूस अददों पर, है ना, 4, 8, 12 के हिंद से की दलालत मखसूस अददों पर। जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 किस तरीके से लिखा जाता है, तो 4 मखसूस अदद है। 4 ये जो है 4 ये लिखा हुआ है, 8 ये लफ्ज़ों में लिखा, ये 8 ये है तहरीर की सूरत में लिखा गया है, 12 ये लिखा गया। अब ये 4, 8 और 12 इनका एक मखसूस अदद है। 4 ये जो इस तरीके से इसकी सूरत है ये किस पर दलालत कर रहे हैं, तो 4 पर दलालत कर रहे हैं, यानी जो 3 के बाद आता है। 8 ये किस पर दलालत कर रहे हैं, ये जो 8 बना हुआ है ये किस पर दलालत कर रहा है, तो 7 के बाद जो आता है 8 उस पर दलालत कर रहा है। 12 ये जो बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ पर दलालत कर रहा है, तो 12 जो 11 के बाद उस पर दलालत कर रहा है। ठीक है, तो अब 12 की सूरत, 8 की सूरत, 6 की सूरत, तो ये जितने इसमें भी हिंद से लिखे हुए हैं, यानी जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं, हिंद माने गिनतियाँ, जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं, ये जाहिर सी बात है ये अपना अपना एक माना बता रहे हैं कि अगर 4 बोलेंगे तो 4 इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, और 8 बोलेंगे तो 8, है ना, या ये कह लो कि ये 4 से वही 4 मुराद लेंगे जो 3 के बाद आता है। ये जो इसमें बना हुआ इसको 8 कहते हैं, है ना, तो ये 8 से मुराद वही है जो 7 के बाद आते हैं। 12 लिखा है तो ये 12 वही हैं जो 11 के बाद आते हैं। ठीक है, तो उनकी यही सूरत होंगी, मखसूस सूरतें हैं, इनकी मखसूस अदों की सूरतें हैं। तो ये किस पर दलालत करते हैं, वज़इया, इनको वज़ा किया गया। इस गिनती को, इस लफ्ज़ 4 को, ये जो इसको 4 कहा जा रहा है, ये जो है वज़ा किया गया है 3 के बाद जो 4 आने वाला है उसके लिए। इसी तरीके से 8 ये वज़ा किया गया है 7 के बाद वाले के लिए। इसी तरीके से 12 की ये जो गिनती है इसको वज़ा किया गया है, यानी मुतय्यन किया गया है कि इसको देखकर उसी को समझना जो 11 के बाद आता है 12। ठीक है, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं है क्योंकि तहरीर में लिखी हुई है चीज़, तहरीर में चीज़ लिखी है, लफ्ज़ नहीं, फिर भी वाज़े ने इसको वज़ा किया, मुतय्यन किया उसके लिए। ठीक है, दलालत तबइया लफ्ज़िया वो दलालत है जिसमें तबीयत का पैदा किया हुआ लफ्ज़ किसी चीज़ को बताया, यानी जो तबीयत से पैदा हो, साफ साफ कह लो, और वो लफ्ज़ों में हो। हमने सब बता दिया है। ठीक है, जैसे ऊह की दलालत सीने की तकलीफ पर। दलालत तबइया गैर लफ्ज़िया वो दलालत है जिसमें तबीयत से लफ्ज़ के मासिवा ऐसी चीज़ पैदा हो, यानी तबीयत लफ्ज़ के मासिवा मतलब यानी वो जो लफ्ज़ों में ना हो, तबीयत से पैदा हो लेकिन वो लफ्ज़ों में ना हो। ठीक है, जो दूसरी चीज़ पर दलालत करे, जैसे चेहरे की सुर्खी की दलालत शर्मिंदगी पर। चेहरे की सुर्खी की दलालत, चेहरा सुर्ख है तो आपको पता चल जाए भैया लग रहा है ये शर्मिंदा हो गया है, तो चेहरे की सुर्खी की दलालत। अब भाई चेहरे की सुर्खी ये लफ्ज़ तो है नहीं, है ना, फिर भी ये किससे पैदा है, तबीयत से पैदा है। चेहरे की सुर्खी जब होती है तो पता शर्मिंदा है इंसान, तो ये तबीयत से ही है। चेहरे की सुर्खी की दलालत शर्मिंदगी पर, और चेहरे की जर्ती की दलालत खौफ व हिरास पर। ये सब लफ्ज़ नहीं है फिर भी ये सब तबीयत से पैदा हो रहे हैं। और जैसे घोड़े की हिनहिनाने की दलालत घास मांगने पर। ठीक है, दलालत अक़लिया लफ्ज़िया वो दलालत है जिसमें लफ्ज़ वजूद, हाँ, जिसमें लफ्ज़ वजूद लाफिज पर दलालत करे। लफ्ज़ जो है वजूद लाफिज पर दलालत करे। वजूद लाफिज माने बोलने वाले के वजूद पर, लाफिज माने बोलने वाला। ठीक है, वजूद लाफिज यानी लाफिज बोलने वाले के वजूद पर दलालत करे। ठीक है, इससे उसकी मिसाल जैसे पस दीवार की मुहम्मल आवाज़ की दलालत वजूद लाफिज पर। तो हम उसी को जो मैंने मिसाल दी है, जैसे लफ्ज़ दैज़ ये जैद का मुहम्मल है, जैद ये मौजू है और लफ्ज़ दैज़ ये उसका मुहम्मल है। तो हमने उसको सुना दीवार के पीछे से, हमने बता दिया कि वो जो शख्स है ना वो क्या है, वो बोलने वाला है। लाफिज माने बोलने वाला। दलालत अक़लिया गैर लफ्ज़िया वो दलालत है जिसमें लफ्ज़ के मासिवा, लफ्ज़ के मासिवा का मतलब ये होता है जो लफ्ज़ के अलावा हो, वज़ा और तबा के दखल के बगैर, यानी वो वाज़े के वज़ा करने से ना हो और तबीयत से भी पैदा ना हो, बगैर किसी चीज़ की दलालत किसी दूसरी चीज़ पर हो। जैसे कि ज़मीन व आसमान की दलालत खुदाए ताला के वजूद पर। ज़मीन व आसमान मौजूद है। देखो कहा जाता है ना कि अगर कोई किसी शख्स के पास, किसी कौम के पास अगर अंबिया कराम मबूस नहीं किए गए हैं, यानी अंबिया कराम नहीं भेजे गए हैं, फिर भी उस कौम को ज़मीन व आसमान को देख कर अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर
جو ہے ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اس کو ضروری ہے زمین و آسمان کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ تو انسان اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اس کو دیکھ رہا ہے، اور ٹھیک ہے، تو اس کو خود ہی معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کا بنانے والا وجود باری تعالیٰ ہے، نہیں کوئی ذات ضرور ہے جو اس پوری دنیا کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے زمین و آسمان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، تو یہ عقل ہی تو ہے نا، کہ عقل لگاؤ اور پتہ لگاؤ کہ اس زمین و آسمان کو کون چلا رہا ہے، تو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ ضرور کوئی ہے اس کا چلانے والا۔ وہی کہا انہوں نے، جیسے زمین و آسمان کی دلالت خدائے تعالیٰ کے وجود پر، اور جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر، دھواں کو دیکھا اور آگ کا علم ہو گیا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے صاحب کتاب کا طرز ہے بیان کرنے کا، اور ہم نے جو بیان کیا وہ آسان انداز میں بیان کیا ہے، یہ بھی آسان ہے وہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہماری بات کو اگر سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پھر بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔